Okay. So shall we start? Yes, sir. Okay. So good afternoon to all. Today we are going to learn about some various aspects of data analysis in physical therapy. As you all aware about, the physiotherapy is an uncultivated land, right? And every day you are dealing with the patient, every day you are collecting sort of data in the form of numeric values or in the form of non-numeric values, right? So it is believed that for our concern, हमारे concern के लिए physiotherapy aspects के लिए we have to learn some important strategies, important methods of calculation, which is very much limited to the particular type of research. So, can you just tell me what type of research you are usually going to see? किस तरह के researches आप देखते हैं? Analytic kind of research. Systematic review. Analytical research. Not Analytical research, okay. Experimental research, yes. Comparative analysis, comparison, experimental, pre, post, inter. There are so many variations of the research, correlation, including. So, in those type of research technologies, which type of formula or which type of process you are getting indulged in order to provide the outcome in the form of conclusion, right? So we are discussing some important aspect. Can you just tell me what do you mean by variables? What do you mean by variables? The entities that are changing. Example? Ages, okay. If you are doing a study on weight gain or weight loss, then weight will be a variable. Weight will be a variable. हाँ जी, इधर से कोई वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल मतलब क्या? Anything which alter, right? Anything which will or which can alter. For example, we have two types of variables like dependent variables and independent variables. What do you mean by dependent variables? Any example? For example, diathermy लगाने से pain कम होता है. So which is what is independent and what is dependent? Diathermy is independent and pain is dependent. Change in pain is like our is dependent variable because it is depend upon the diathermy, and diathermy is our independent, which will like progressively reduce the cause of pain. So we'll start with some important aspect. So it's just introduction. Data analysis method of putting facts and figures to solve the research problem. Obviously, whatever you are going to collect and your thesis, you are going to conclude them. आपको उसको conclude करना पड़ता है. Without conclusion, you are not going to be like come to any type of outcome. So the process of systematically applying statistical or logical techniques to describe, illustrate and evaluate data. Data किसी भी तरह का हो सकता है in the form of frequency, in the form of survey, in the form of pilot, in the form of experimental, in the form of numeric values, in the form of non-numeric values. Because whatever we are like generally performing in our MPT thesis or in case presentations, what we are doing with the experimental sort of studies regularly at all the time. राइट. सो उसमें हम क्या करते हैं, दो ग्रुप्स बना देते हैं. दो ग्रुप्स के बाद जो है उनका प्रोग्रेशन देखते हैं, पी देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, फॉलोड बाय द इंटरप्रिटेशन. सो कभी कभी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस विद द रिव्यू आर्टिकल्स, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस द पायलट स्टडीज, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस द सर्वे पैटर्न, हाइपोथेसिस किस स्टडी में रखना है, किसमें नहीं रखना है. दिस इज अवर जनरल लाइक प्रॉब्लम. सो
next. So the objectives, basically the objective of statistical analysis to turn raw data into information, to summarize and describe data. Obviously, why you are going for the data analysis? Why you are going for data analysis? हम क्यों data analysis कर रहे हैं? Anybody? Come to an important conclusion of your study, whatever you are performing PPC. Right? Without data analysis, you are not going to be a conclusion. To answer the research question, problems, to determine trends and relationship among variables. So, usually हमने पूछा variables के बारे में. There are dependent variables, there are independent variables. बहुत सारी statistical analysis researches में क्या होता है, एक ही variable लिया जाता है स्टडी के लिए. फॉर एग्जाम्पल BMI, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे BMI चेक करना है अभी. टोटल मैंने लोगों का जो है वो कैलकुलेशन कर लिया है, 20-20 के ग्रुप में बांट दिया है और मैंने देखा BMI लाइक मेरा वेरिएबल जो था एनालिसिस का वो एक है. इट इज लाइक अ सिंपल सॉर्ट ऑफ स्टडीज. बहुत सारी स्टडीज में क्या होता है, वेरिएबल जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाता है. जैसे BMI भी ले लिया, वेट भी ले लिया, एज भी ले लिया, या फिर आपका हाइट ले ली. अलग अलग से यू हैव टू बी लाइक परफॉर्मिंग. सो व्हेनेवर यू आर इंक्लूडिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स, योर रिसर्च पैटर्न शुड बी लाइक आउटकम बेस्ड टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन बाय यूजिंग सैंपल डाटा. ओके, नेक्स्ट. So this is the important slide what you are going to solve, because our whole data analysis will depends upon these 3 patterns. इन 3 patterns के अंदर में ही हमें जो है हमारा data analysis को resolve करना है. And your data analysis is again divided into 3 patterns on the basis of tools. Second, on the basis of variables. And the third one is on the basis of nature of data. So what do you mean by on the basis of tools? Now we are going to differentiate the data analysis pattern. किस स्टडी में किस तरह से अप्रोच रहेगी, हम अब उसकी तरफ जो है वो प्रोग्रेस स्टार्ट करना है. So on the basis of tools, what do you mean by tools? Outcome measures. They have outcome measures. Yes, exactly. So on the basis of tools, it is divided into descriptive and inferential. What do you mean by descriptive? Which tells the characteristics of particular data. It has to be described. Descriptive sort of analysis में हम जब भी किसी चीज को describe करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नी पेन का पेशेंट ले लिया मैंने और उसको मैंने जो है वो कंट्रोल ग्रुप के साथ लाइक एक छोटी सी रिसर्च का एग्जांपल ले रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डिस्क्राइब द होल स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर. सो उस सॉर्ट ऑफ स्टडीज के अंदर जो है डिस्क्रिप्टिव सॉर्ट ऑफ एनालिसिस आता है. एंड इन्फरेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फरेंशियल? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब भी हम कभी अनुमान लगाते हैं कि फोरकास्टिंग हो गई है कि हमारा बारिश आने वाली है या 3 दिन तक कंटिन्यूअसली बारिश आती रहेगी और मान लो नहीं आएगी, या हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा आ गई, या हो सकता है कि पॉपुलेशन के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, वो कम भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है. यू आर लाइक इन्फरेंशियल द थिंग्स एनालिसिस, राइट. तो ऐसा कोई भी अप्रोक्सीमेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी ओपीडी में हम ऐसा लाइक इन्फरेंशियल एनालिसिस दे रहे कि हो सकता है कि अपकमिंग डेज में ऑक्सडाइनी के पेशेंट बढ़ जाएं. मान लीजिए पर डे के 15 पेशेंट आने लग जाए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हो सकता है 15 से 30 भी आ सकते हैं और 15 से 5 भी आ सकते हैं. ऐसे कोई सॉल्यूशन के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं जो देखेंगे. ठीक है, व्हेनेवर यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग. ओके, so on the basis of variables, there are 3 types of variables: univariate, bivariate and multivariate. Example, yes, univariate मतलब you are taking in one variable in your study design
जरूरी नहीं है कि मेरे पास 100 पेशेंट होंगे तभी मैं रिसर्च करूंगा या करूंगी या स्टार्ट होगा. यू हैव टू बी लाइक वेरी मच प्रोग्रेसिव इन योर केस स्टडीज फर्स्ट. केस स्टडीज होती है 2 या 5 पेशेंट के ऊपर, 10 पेशेंट के ऊपर. यू हैव टू डिसाइड योर ओन मेथोडोलॉजी एंड देन फॉलोड बाय कंक्लूसिव डेटा एनालिसिस, राइट. सो इट विल बी लाइक न्यूमेरिकल बहुत इजी होती है, स्मॉल सब्जेक्ट साइज की भी होती है. बाय वेरिएंट 2 वेरिएबल्स यूजुअली जो है वो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं. एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स लेते हैं, BMI ले लेते हैं, एज ले लेते हैं, एग्जांपल है. सो उनको हम जो है वो कंपैरिजन करते हैं या उनके बीच में जो है हम इफेक्ट सॉर्ट ऑफ जो है वो देखते हैं. मल्टीवेरिएंट मतलब 2 से ज़्यादा अगर वेरिएबल्स हैं, एज भी आ गया, हाइट भी आ गया, वेट भी आ गया. सो ऐसे किसी रिसर्च के लिए, ऐसे किसी एनालिसिस के लिए यू आर गोइंग फॉर द एनोवा टेस्ट. 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, अनकोवा, मैनोवा, मल्टीवेरिएट टेस्ट you are using in such type of pattern. On the basis of nature of data, quantitative and qualitative. So quantitative again, your quantitative analysis is nothing but it is the numeric measuring values. क्योंकि हम लोग जब भी रिसर्च की बात करते हैं हम मदर आर्टिकल की बात करते हैं. हम मदर आर्टिकल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि मदर आर्टिकल में ऐसा हुआ है, उसकी एक नॉर्मल वैल्यू गिवन है जो पब्लिश्ड है, जिसको रेफरेंस मानकर आप आगे की अपनी स्टडी का बेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट. इसलिए बोला जाता है कि वो क्वांटिटेटिव स्टडीज होती है जिसमें हम लोग जो है वो इस तरह के पैटर्न यूज करते हैं. एंड व्हाट अबाउट द क्वालिटेटिव, नॉन मेजरेबल, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. सो फ्रीक्वेंसी 50 लोग 10 लोग भी हो सकते हैं या कोविड हो सकता है कि उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मिडिल पॉपुलेशन हम लें तो उसमें कोविड का परसेंटेज एज कंपेयर टू एल्डर पॉपुलेशन इज मच लोअर एज कंपेयर टू दी हायर 50 प्लस या 60 एज पॉपुलेशन. सो इस तरह की एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब भी हम एनालिसिस करते हैं इट विल बी लाइक क्वालिटेटिव. याद रहेगा. नेक्स्ट, सो we'll start with the detail of these techniques. So descriptive analysis, what does it mean? Information that describes data, organize data in meaningful way, describe situations. For example, in a survey, आपने किसी पेंडेमिक का सर्वे कर रहे हो, आप सिचुएशन के बारे में जानना है कि अभी एग्जैक्टली आज कितनी थी. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब भोपाल गैस कांड हुआ था तो उस टाइम पर शी इज प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो किस तरह से फेज जाकर अपने आप को बचाया और उसके बाद उन्होंने कैसे अपने आप को जो है वो प्रोग्रेसिव किया. सो फेज वाइज, सिचुएशन वाइज किस तरह से उसका प्रोग्रेशन है वो. एक्सप्लेन ऑलरेडी नोन डेटा एंड लिमिटेड टू सैंपल और पॉपुलेशन having small size, charts, graphs and tables. Such type of studies in which you are including graphs, tables is the descriptive analysis of. So जब भी हम लोग स्टडी डिजाइन लिखते हैं, स्टडी डिजाइन मेथोडोलॉजी के अंदर you have to be right descriptive analysis part. It will be like more clear, followed by whether it will be like simpler, it will be like t-test or multiple test, वो बाद में देखते हैं. लेकिन सबसे पहले जो स्टडी डिजाइन होता है descriptive sort of study. So we can randomize, cross sectional, right? इस तरह से. Okay. So again इस तरह की स्टडीज के लिए एग्जांपल है. If we had results of 100 students, we may be interested in the overall performance of the students, average mark, percentage of pass, distribution of marks, etc. मतलब अगर आप एक जनरलाइज, इसमें वेरिएबल्स कितने हो गए? एक यूनिट पॉपुलेशन में से आप जितने वेरिएबल्स आप निकाल सकते हो फॉर योर रिसर्च. अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हमने 20 पेशेंट लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के. अब 20 में से मेरे को उसका हिप भी देखना है, मुझे नी की पोजीशन देखनी है, मुझे एंगल भी देखना है, और उसके आउटकम मेजर जो है मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेते जाता हूँ. मतलब मेरे वेरिएबल्स जो है आई एम गोइंग टू इंक्रीज along with the outcome
सो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द वेरिएबल. क्लियर है? नेक्स्ट, yes, how you are going to measure the descriptive analysis method. हम किस तरह से तो कौन-कौन सी टेक्निक्स है मेजरमेंट की जिससे हम अपनी रिसर्चेज जो है वो कंडक्ट करते हैं. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था कि हर एक जगह पर फॉर एग्जांपल एक सीरियल है, कहीं पर बहुत उसकी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा है. सो उस एरिया में जो है वो कितनी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं की खेती है ना, गेहूं की खेती जो है एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो बहुत प्रोमिनेंस है एज कम्पेयर टू अनदर एरिया. Until and unless the climatic condition are same, the water supplying is like constant source. But still वो वाली जगह पर जो है हमारा जो उसका उत्पाद है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है. इसलिए it will be like community frequency distribution. Measures of central tendency. Anybody? मीडियन मोड. मीडियन मोड. मीन क्या होता है? एवरेज ऑफ क्या? मीन क्या होता है आप बताइए? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर प्रोवाइड्स है ना, द टोटल सम इज इक्वल्स टू द इंडिविजुअल वैल्यूज इज योर मीन. जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक दो हमारे ग्रुप है, एक्स ग्रुप और एक वाई ग्रुप है, राइट, और हमारे पास 100 पॉपुलेशन है, 100 का डेटा है. सो हाउ यू आर गोइंग टू टेक, अगर आप उसको मैं आपको इसका मीन निकाल दो फटाफट, तो मीन कैसे निकालोगे? एक्स ग्रुप को और वाई ग्रुप का. ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ऐड इट फॉलोड बाय द टोटल नंबर विल प्रोवाइड यू द मीन. सो हर एक डेटा का मीन तो हाथों हाथ निकालते आना ही चाहिए. अगर हम 30 का निकाल के आए तो 30 डेटा जैसे लिखा वैसे ही फटाफट हमने उसका मीन लिख लिया, बिकॉज मीन इज द बेसिस, क्योंकि वो मीन इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ आइटम्स इन द फॉर्मूला. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉलोड बाय व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? It tells about the mid value of any It population. tells about the average middle value. Average middle value. Average. कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे ये कुछ स्टूडेंट्स जो है मैसी के वो नेशनल मीट के लिए गए थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि भैया 500 बास्केटबॉल एथलीट में से 400 लोग फॉर एग्जांपल उनको एंकल स्ट्रेन है, उनको सिर्फ एंकल स्ट्रेन है. तो उसका जो एवरेज है मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किस चीज के लिए रहा? इट विल बी लाइक डिस्क्राइब बाय द मीडियन वैल्यूज. उसमें से कितना प्रोमिनेंट डेटा है, एवरेज डेटा, फॉलोड बाय मोड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वहाँ सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा बार दिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर, ऐसे ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा बार दिख रहे हैं. एग्जांपल एनीबॉडी? तो जैसे एंकल स्प्रेन जो है वो दूसरी इंजरीज के सबसे ज़्यादा एंकल स्प्रेन के जो नंबर्स तो सबसे ज़्यादा थे. तो एंकल स्प्रेन का जो सब्जेक्ट्स है वो ऑब्जर्व हमारा जो अटेंशन है वो ज़्यादा गेन कर रहे हैं. एग्जांपल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2. इसके अलावा कुछ आप बताइए. आप मोड का एक एग्जांपल, ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं. तो ONE will be the mode. तो है कि ओपीडी जैसे अब जेरियाट्रिक पेशेंट जो है हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पर स्पेशल ओपीडी जो है वो जेरियाट्रिक्स की जो है वो स्टार्ट हुई. आफ्टर कोविड जैसे बायोलेक्ट्रल निमोनिया, ओके, सो पूरे लंग्स के अंदर निमोनिया का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा शो आ रहा है. इसमें हम उसको जो है वो रिपीटेड फ्रीक्वेंसी पे उसकी जो वैल्यूज है वो हम मोड के फॉर्मूले से निकालेंगे. राइट, मीन हमको फ्लो निकालना है. अगर आपको रिसर्च में ऐसा दिख रहा है कि यार ये वाला परसेंटेज है, मुझे कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्टर्ब ज़्यादा मिला इस एज ग्रुप में, सो आपने उसको जो है फटाफट मोड के फॉर्मूले से उसको एक प्रॉपर कंफर्म कर दी उसकी वैल्यू.
कि हाँ ये वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उस लिस्ट में जा रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसा मैडम ने बताया, देयर आर सो मेनी ग्राफिकल बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स और अपने स्कैटरिंग डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर वैल्यूज ऑन द ग्राफिकल प्लेटफॉर्म इज मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो दैट वी हैव द टू वेरिएबल्स, द एक्स वेरिएबल एंड द वाई वेरिएबल। तो उन दोनों वेरिएबल्स के अंदर हमारी जो वैल्यूज है उनको आपको रिप्रेजेंट करके आना चाहिए बिकॉज इट विल बी लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंटेशन एट अ टाइम ऑफ सिनॉप्सिस। हमें ग्राफ एक्सप्लेन करना है। So, सबसे बेसिक जो होता है हमारा वो बार ग्राफ होता है, बार चार्ट होता है जो सिंपली हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता देता है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कितना, या काई स्क्वायर वाला जो चार्ट होता है, पाई चार्ट जो होता है। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब भी क्या होता है हमें कोरिलेशन निकालना है एक दूसरे फैक्टर्स के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर निकालने की कौन सा वेरिएबल कितना स्ट्रॉन्ग, कौन सा वेरिएबल कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या बीएमआई के साथ साथ एज के साथ साथ बीएमआई भी चेंज होता है क्या, डॉट 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 क्या, मतलब वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है, राइट। सो इस तरह की कोरिलेशन जो है बेसिकली कार्ल पियर्सन कोरिलेशन हम बोलते हैं यूजुअली, जो कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के टर्म्स में जो है हम यूजुअली निकालते हैं, पढ़ेंगे। एंड फॉलोड बाय द Spearsman correlation coefficient basically, right? So next we पढ़ेंगे so एक बार फटाफट हम पढ़ लीजिए। Frequency distribution is an systematic arrangement of numeric values from the lowest to highest or highest to lowest। जब भी हम इस तरह का डेटा ले रहे हैं जहाँ पर frequency distribution दिख रहा है, frequency distribution मतलब साक्षी। एग्जाम्पल फटाफट, एज ग्रुप लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपने एज ग्रुप लिया है 10 से 20 साल, 20 से 30 साल, 20 से 40 साल, इस तरह से आपने उसको डेटा को फ्रीक्वेंट किया है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अभी हमने पढ़ा, पॉइंट मीन इज द पॉइंट ऑफ द स्कोर स्टेट दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्कोर divided by the total number of scores, median and index of average position in a distribution of numbers, more a numeric value in a distribution that occurs most frequently, right? So जब भी हम सबसे पहले डेटा स्टार्ट कर रहे हैं 10 पेशेंट पे ही चलेगा, मीन मीडियन मोड फटाफट निकाल के अलग करना है। अभी घर जाके फॉर्मूले देख लेना, मीन का आपने पढ़ा ही है, मीडियन भी पढ़ा है, मोड भी पढ़ा है, एक एक जो है उसका सवाल सॉल्व कर लेना तो अपन को ये भी समझ में आ जाएगा कि अपन को कैसे स्टैटिस्टिक्स करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ द सेकंड टाइप इज द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम अनुमान लगाते हैं एंड और इट्स पॉइंट्स मेक्स इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन यूजिंग डेटा ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। कितना पेशेंट से कितना पॉपुलेशन से डेटा आएगा, आना है, नहीं आना है, व्हाटएवर। एक्सप्लेन चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, जैसे बताया प्रेडिक्शन, जितनी भी आप प्रेडिक्टिव वैल्यू होते हैं वो भी इसी यूनिट में आती है। कंपैरिजन, हाइपोथेसिस स्टडीज एंड मेक प्रेडिक्शंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज द प्रोबेबिलिटी। मतलब इन्फेरेंशियल एनालिसिस के अंदर हमारा मैक्सिमम पार्ट जो है वो रिसर्च का, स्टैटिस्टिक्स का वो कवर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट हाइपोथेसिस, कौन सी स्टडी में हाइपोथेसिस लगाएं नहीं लगाएं, जैसे कल अपना डिस्कशन एक चल रहा था वहाँ पर नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो किस कंडीशन में लगाना है नहीं लगाना है। प्रोबेबिलिटी, अगेन प्रेडिक्शन कि कितने बच्चों में भूखे पेट जितने आए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 90%